5-6 उग्रवादी आज रात निकला एंड ही वाज शिवरिंग, नॉट आउट ऑफ कोल्ड, आउट ऑफ फियर। चेक किया तो वो सर पे भी गोली लग चुका था। आपने कभी किसी को आंखों में आंखें डाल के देख के have you killed them? यस, How was it like? इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग। दैट इज माय ब्रेड एंड बटर। मैंने फायर किया, टप मिस। तो इन द मीन टाइम वो मेरे ऊपर निशाना लिया, जैसे ऐसा किया, फायर किया। आई ऑलमोस्ट डाइड इन दिस। अरे तो इस बंदा के पीछे गया, उसको ठोका, ऐसा करके 5 ठोके। What is the most brutal thing that you have ever seen? Pregnant lady was there, 18-19 years. Her belly was cut open, and the unborn child arrested. Did you give them what they deserved? I gave them double of that dose. I can only thank you for that. Thank you, sir. This time I'm trying to, I can't match much, but I will try to match the color of your shirt at least. In this part. Sir, last time हम 1996 तक गए थे और आपने हमें कुछ इंसिडेंट्स बताए, कुछ ऑपरेशंस बताए थे, बहुत कुछ हमको बताया था, बट आई वांट टू आस्क सेट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। आपने मुझे अबू जुबैर के बारे में बताया था, यू मेंशन्ड इट इन पासिंग। ये क्या इंसिडेंट था सर? एक्चुअली 1997 में थोड़ा हार्डकोर टेररिस्ट आने लगा था। सर दे वांटेड टू the Pakistanis, they wanted to increase terrorism in Poonch and Rajouri districts of Jammu and Kashmir, और veterans and most likely मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्स फौजी, पाकिस्तानी फौजी, एक्स SSG, ये लोग भी आए होंगे या सर्विंग वाले भी आए होंगे कान से। And the quality of terrorists they sent, definitely they were better fighters. They were more brutal also, more brutal and better fighters. तो ऐसा करके 97 में and they had complete दबाव on the local population. अच्छा, उसमें 2-3 कम्युनिटीज है पूंछ रजौरी में, हिंदूज भी है, देन मुस्लिम्स आर देयर, मुस्लिम्स में भी गुज्जर, बकरवाल, कश्मीरी, ये सब है। एंड मैनी अ टाइम्स यू नो दिस बकरवाल्स एंड गुज्जर्स दे आर नॉट इन सिंक with the Kashmiris. right. So there are differences amongst them also. But at this moment 1997 में हमारे पास खबर ही नहीं आते थे लोकल से, एंड वी हैड नो अदर मीन्स टू गेट इंटेलिजेंस, Right. एक्शनेबल इंटेलिजेंस जो बोलते हैं, आप समझ रहे होंगे, यू नो। हाँ, ऐसे झूठ बोलने वाले, डबल सोर्सेस, डबल, उनको भी खबर दे रहा है, हमें भी दे रहा है, और हमें खबर देने के बाद जाके उनको इन्फॉर्म कर देगा कि फ़ौज आ रहा है, ऐसे वाले भी बहुत है। सो हमारे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग थे, इट वाज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, सो कोऑर्डिनेशन भी नहीं था। देन वी डिड नॉट हैव ऑल दिस ड्रोन्स एंड ऑल, हमारे पास नहीं थे। सो देयर वर एब्सोल्युटली नो मीन्स, सो मोस्ट ऑफ द टाइम we had to put in a lot of effort to gather intelligence ourselves in military ways. And that is very, very arduous and time consuming. Sir, can I ask, when you say military ways, what do you mean? हमारे अपने तरीका होता है, 2 men, 3 men, 4 men, ऐसे पेट्रोल्स भेज के, they will go to a place. Then they will observe the whole area at night and day. They will hide in the daytime. So they will make hideouts, छोटा छोटा hideout बना के 3-4 दिन रह के आएंगे, पूरा एरिया को ऑब्जर्व करेंगे। कोई भी हरकत है, most likely they will not take any action. They will report back. They will gather intelligence so that you can plan properly and hit them. Okay. So all the armies in the world, they do it. ठीक. So,
And the better armies, they do this aspect of military operation much, much better. Intelligence gathering is very vital for success in counter-terrorist operations. Intelligence gathering, hard intelligence, Sure. pinpoint intelligence, very, very important. That is 90%. Now, 10% is the execution. Plans being made and how you execute on ground. It is something like that. Now, in execution also, how you keep your movement from place A to target area is totally secret. That is another 90% of that part. So, without that, the moment you step out, wherever you are, if people get to know, those guys get to know. तो सर आई वांट टू गो ऑन अ बिट ऑफ अ टेंजेंट आपकी परमिशन से। आपने इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात करी और हम इस पॉइंट पे थे कि 1997 में हार्डन फाइटर्स आ रहे थे और इंटेलिजेंस गैदरिंग हमारी अच्छी नहीं थी, करेक्ट, मैकेनिज्म नहीं थे। बट इंटेलिजेंस गैदरिंग पे सर अगर मैं 2 मिनट स्पेंड कर पाऊँ, बिल्कुल। आपने सर एक पॉइंट में मुझे बताया था कि एक ऑपरेशन में आपने कुछ लोग पकड़े, 3 लोग पकड़े वहाँ पे और उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने की बाकी की पार्टी कहाँ है। तो एक को पैर पे गोली मारी और उसको उनके हाइड आउट का है, हाइड आउट का, हाँ, बाकी पार्टी कहाँ है। एक के गोली मारी, दैट वाज इन कुपवाड़ा। एक को गोली मार के 2 लोगों को और पकड़ा, तो फिर वो आपको लेकर गए एंड देन फाइनली विद परसिवियरेंस यू फाउंड इट। हाँ, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज दे वर आल्सो लॉस्ट। हाँ, बट देन अल्टीमेटली इट वाज फाउंड। यस। तो सर ये जो तरीके हैं, व्हाट अदर टेक्निक्स आर देयर फॉर इंटेरोगेशन? इंटेलिजेंस गैदरिंग का एक तरीका इंटेरोगेशन भी होता ही है। Interrogation, I'll like to keep it slightly low profile because as far as I know, I am totally aware of Geneva Conventions and terrorists are not covered by that. Right. They are persona non grata. They are not citizens of any country. Correct. So when you say, that's why you see Pakistan and all, they keep sending hardcore terrorists into India and then they deny. So deniability is there. Yes. And these guys also, I have not caught anyone alive except those 3. So if you ask them, they will, most of the hardcore ones will never accept also that they are from Peshawar or Karachi or Rawalpindi, they will not accept. अगर उसको पता है कि वो मरने वाला है तब भी नहीं करेगा एक्सेप्ट। I'll be telling you about another operation जिसमें मैं लश्कर एंड हिजबुल मुजाहिदीन के जो बॉस था उसको मैंने मारा था। अच्छा। उसका नाम था शाहजी। तो उसको मैंने ऑफर किया था, मैंने उसको घेर लिया था। I'll be telling you later. सर They did not surrender. They did not. Hardcore. Absolutely hardcore. So they are brutal and they know they will get brutal treatment from me. मिलेगा ही मिलेगा. But I offered them. सर अगर हम वापस आए 1997 में। No, you were talking about intelligence gathering. Yes. Yeah. ठीक है। If तो उसमें सर अब अपार्ट फ्रॉम कल्टिवेटिंग इंटेलिजेंस एंड सोर्सेज, मुझे जब मेरे ब्रिगेडियर दीप भगत से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि सबसे बढ़िया तरीका इंटेलिजेंस गैदर करने का ये है कि उनका दिल जीत लेना चाहिए, दिल और दिमाग जीत लेना चाहिए उन लोगों का जेन्युइनली। लोकल्स का सपोर्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल है। दिस वाज हिज कंक्लूजन, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ही सेज। I tend to agree, but that is for the government to decide. At my level, it is not to be done at my level. Okay. At my level क्या होगा? इनोसेंट को हैरेस मत करो, इनोसेंट को अच्छा से ट्रीट करो, वही होगा ना। बट it's a very big thing. It's for the whole administration and the country to take on, so that the alienation is reduced. Because they have been the public, इनको तो indoctrinate किया हुआ है। आज़ादी देंगे, आप इंडिया के साथ बिलोंग नहीं करते हो, हैन तैन, झूठ मूठ का इनका तो दिमाग घुमा के रखा हुआ है। जितने उग्रवादी है उनके हैंडलर्स है, देन होल कंट्री इज बिहाइंड दैट, नॉट वन कंट्री, मेनी कंट्रीज आर बिहाइंड दैट टू ब्रेक यू अप।
Yeah. Yeah. सो इट इज नॉट ए स्मॉल एफर्ट. हमारे तरफ से क्या हो सकता है? हाँ, गांव वालों को, सरपंच को मिल लो, गांव वालों को मिल लो, उनके घर में कुछ खाना वाना खाने से भी पैसा दे दो, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. छोटा मोटा है. हाँ, छोटा मोटा, एल्दो छोटा मोटा, लेकिन इम्पोर्टेंट. Yes, absolutely. एंड वी शुड नॉट मिसबिहेव with their with anybody, Right. and we should treat them with respect. Those things apply everywhere. जो मेरे स्टेट अरुणाचल प्रदेश में अप्लाई होता है, दिल्ली में अप्लाई होता है, वही अप्लाई होता है. So we have to be ourselves, we have to be disciplined force, and we have to respect them, citizens of the country. ठीक है. तो सर हम अगर वापस आएं, so again back to 1997 and intelligence collection is hard. Hardened fighters are coming. Very hard. Very hard. And we went on a couple of operations, very, very longish kind of operations, लंबा ऑपरेशन ना, 4-5 दिन के. ढूंढा कई जगह थोड़ा डाउट भी था. प्रॉब्लम क्या है? हार्ड इंटेलिजेंस नहीं होने से आर मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू नाइट, ऑब्लिक बैड वेदर. Right. तो बैड वेदर में हम लोग छुप छुप के ना दिन में भी जा सकते हैं. वी कैन रीच आवर टारगेट. बट नॉर्मल टाइम में जा ही नहीं सकता है. एंड पहाड़ों में रास्ता उस्ता पता नहीं है. रात को आप डिस्टेंस भी कवर करते हो, बहुत कम करते हो. एंड देन गाँव में ना डॉग्स आर देयर. जैसे स्मेल मिल जाता है वो दूर से ही भौंकना शुरू कर देता है. तो उसके लिए हम लोग एक तरीका ढूंढा. गाय का, बफलो गाय का ये जो सुसु है और पोटी है, उसको हम लगा लेते थे बॉडी में, जस्ट टू कंफ्यूज द डॉग्स. सो व्हेन दे स्मेल एनिमल्स, दे विल बार्क फॉर सम टाइम एंड दे कीप क्वाइट, एंड दैट बार्किंग इज डिफरेंट स्टाइल. Right. So to near any village, to go near any village, most important is how to keep the dogs, how to fool the dogs. Right. Fool the dogs. Interesting. If the dogs don't bark, how will they get to know? वो तो सेंट्री, परमानेंट सेंट्री नहीं रखता है वो लोग. Dogs are their sentries. Of course. ठीक है. So then what happened? You went on these long operations. We found and we tried our best. बड़ा जंगल बहुत है उधर, साउथ ऑफ पीर पंजाल, लॉट ऑफ फॉरेस्ट. लोरन मंडी करके इतना सुंदर जगह है. सेब के बगीचे, चेरी के बगीचे, देन बग्गू गोशा. अरे फ्रूट ना इन कश्मीर, मैंने कोई फालतू के पेड़ है ही नहीं. या तो टिम्बर है, वो भी काटने से इतना अच्छा स्मेल आता है, देवदार. And then all other trees are fruit trees, But enchanting land. Absolutely, Then what happened, sir? These operations started. How did things change? What happened? The फौज जो है थोड़ा बैकफुट में था. अच्छा. बैकफुट में तो इनके 1 साल, 6 months, 1 year हो गए थे. इनके कैजुअलिटी हो रहा था और इनको सक्सेस, कामयाबी नहीं मिल रहा था फौज को. तभी हमें कुपवारा से उठा के इधर मुझे भेज दिया. किधर? ये पुंछ राजौरी सेक्टर में. ओके. पुंछ सेक्टर यू कैन से. ओके. वहाँ भेज दिया. तो आई वॉज स्टेइंग एट ए प्लेस कॉल्ड DKG, डेरा की गली. ओके. इट्स लाइक ए पास, फ्रॉम थाना मंडी यू गो अप, देन यू कम डाउन. सो देयर इज ए प्लेस कॉल्ड बफलियाज. तो बफलियाज वो हिस्टोरिकली जो लोकल्स हमें बताया है, जो ज्ञानी लोकल्स है, जानने वाले लोकल्स, वो बताया अलेक्जेंडर द ग्रेट के घोड़ा था. अच्छा. उसका नाम था बुके पैलेस. तो वो उधर मर गया था. सो दे नेम द प्लेस बफलियाज बिकॉज दे कुड नॉट प्रोनाउंस इट in the Greek way. Right. And that is the place where Alexander the Great turned back. And this I don't know exactly whether this incident is before Porus, King Porus, or after King Porus. I am not aware. Right. But probably that is why he did not reach Kashmir. Because जहाँ घोड़े नहीं जाते थे, ये लोग जाते नहीं थे. तो एक वॉरियर होता था, एक घोड़ा,
देन और एक 2 घोड़े होते थे एक्स्ट्रा, म्यूल ऑब्लिक घोड़ा, जिसमें इनके खाने पीने के चीज़, रहने का चीज़, ये सब रखते थे. Of course, the That main is how they used to travel. travel. ठीक है सर, फिर then you were sent to this place. हाँ, डीकेजी में आए तो बहुत ऑपरेशंस लॉन्च किए, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं. एंड द वे पब्लिक ऑल्सो इज टू लुक एट अस. हम दूसरे जगह में जाते थे गाड़ियों में ना, सब लोग वेव करेगा एंड अच्छा लगता था. ऐसा जगह में आ गया, वेव भी कम था. यू कुड फील द एनिमोसिटी दोज डेज. सो अभी एक ऑपरेशन प्लान किया. मेरा टीम कमांडर था उस समय, तो उसने बोला कि यहाँ पे एक गांव है, नीचे थाना मंडी गांव है, इस गांव को हम लोग एड्रेस करेंगे. एंड ही सेड देयर वर टीम कमांडर एंड 2 ऑफिसर्स, दैट इज इंक्लूडिंग मी. तो ही टोल्ड मी आई विल बी इन चार्ज ऑफ द QRT, क्विक रिएक्शन टीम, ठीक है. with 14-15 odd guys ना, कमांडोज. सो ऐसे पहाड़ था. सो यहाँ पे वो गांव था जिसको वो लोग एड्रेस करना है, थाना मंडी नीचे. और एक टाउन था दरहाल नाम का. सो डीकेजी इधर था. सो दे सेड दे विल गो बाय व्हीकल टू दरहाल एंड दे विल ड्रेस अप एज टेररिस्ट. वहाँ से वो लोग इस गांव को एड्रेस करेंगे. इन द मीन टाइम आई वॉज सपोज टू go cross country and reach on top of the village and giving them a reserve. But they will be entering the village. They will do some whatever conversation, talking with the villagers and try and fool them. ऐसे प्लानिंग हुआ था. आई वॉज नॉट वेरी होपफुल. मैंने बोला था नहीं ये नहीं चलेगा, है नो, गाँव वाले बुद्धू नहीं है. मैं ऐसा भी बोला था, पर नहीं माना. तो ये लोग गाड़ी में निकल गए. इवनिंग हो गया, बारिश शुरू हो गया. तो 8 बज गया शाम का. तो बारिश भी शुरू हो गया. इट वॉज नॉट वेरी हैवी, पर थोड़ा मतलब मीडियम बारिश शुरू हो गया. तो मैंने बोला देखो, ये बारिश में हरकत करने से चांस है. तो वो लोग भी पक्का बारिश में हरकत करता है. माई इंस्टिंक्ट्स टोल्ड मी. सो वी वेंट. तो सम वर नॉट कीन ऑल्सो. बारिश में को भीग के कौन जाना चाहता है, नो. इवन इफ़ यू पुट द रेन कोट, और रेन कोट पहनने के बाद सब कुछ भारी भी हो जाता है और चलना मुश्किल हो जाता है विथ पिट्ठू, हथियार. देन इट इज़ वेरी कोल्ड. तो ऐसा करके हम लोग 2 बजे करीब फिर एक गली में पहुंचा. लेकिन अभी तक उस गांव के एरिया में पहुंचा नहीं था जिसको पूरा टीम ने एड्रेस करना था. तो मेरे साथ था एक हवलदार था, जोत सिंह. तो उसमें छोटा सा गली में एक देयर वाज ए हट. इट वॉज काइंड ऑफ आई थिंक पीर बाबा. वो भी पीर बाबा था. तो मैंने उसको बोला, वहाँ रुक गया, पोजीशन ले लिया और बोला उसको चेक करके आ. तो ये 2-3 गए. तब तक 2 बज गया था रात का. तो वहाँ जाके फिर रिपोर्ट मिला मुझे कि वहाँ एक आदमी है, मिडिल एज्ड, अराउंड 40 ईयर्स के. तो फिर मैं गया, मैं उसको पूछताछ किया. तो आप वो भी मुझे इंटेरोगेशन का बात कर रहा था. मैंने लगाया बम्बू. तो पहले तो बोल नहीं रहा था, वो डर गया रात को. ये तो बड़ा फनी लुकिंग, डेंजरस लुकिंग फौजी लोग आ गया. दे डोंट लुक नॉर्मल, एबनॉर्मल लुकिंग फौजी आ गए, और वो भी रात के 2 बजे. तो देन आई न्यू कि he had no business to be there. There was a village called Marha, right, which was about 2 kilometers north. yes. उधर से आए थे ये.
अच्छा, तो उसका कोई बिजनेस ही नहीं है इधर रात को 2 बजे उस हट वो पे, भी गांव से बाहर। हाँ गांव से बाहर अकेला. So although curfew wasn't there, but I knew something is amiss. थिंग इज वियर्ड. ओके, नहीं ये तो बात मैं पूरा नहीं बताऊंगा कैसे इंटरोगेट किया, ठीक है, वो मुझे नहीं बताने से ठीक है. ठीक है. तो वो मुझे बताया कि 5-6 उग्रवादी आज रात निकला. और मैंने बोला किस दिशा में निकला? Was it towards this village to be addressed or towards opposite side? उसने बोला नो, towards the village to be addressed. अभी आज रात, अभी पता नहीं प्रीवियस नाइट ना, अभी 2 बज चुका था. अच्छा, देन इनिशियली आई थॉट ये तो फिर उल्लू बना रहा होगा. तो आगे 2 स्काउट था मेरा. फिर बोला कोई बात नहीं, कहाँ गया, किस तरफ गया अप्रोक्सीमेटली, तो चल हमारे साथ ना. अभी उसको छोड़ नहीं सकता था. उसको छोड़ने से वो दौड़ के जाएगा गांव में, वहाँ से रेडियो सेट से बता देंगे. सो आई हैड टू कीप हिम विद मी. राइट. तो फिर हम लोग जा रहे थे, अराउंड 4 बज गया. फिर 2-2.5 घंटा फिर बारिश में चल रहे. तो ऐसा स्लोप था ना, स्लोप में आगे स्काउट था, उसके बाद दिस गाय वाज देयर. वो एकदम फ्रीज हो गया और रुक गया. तो हमारे पार्टी रुक गए. वो ही स्टार्टेड विस्परिंग टू मी कि दोज गाइस आर वेटिंग देयर, एंड ही वाज शिवरिंग. अच्छा, शिवरिंग कर रहा था, नॉट आउट ऑफ कोल्ड, आउट ऑफ फियर. देन आई न्यू कि ही वाज टेलिंग द ट्रूथ. देन मैं केयरफुली देखा, तब नया नया नाइट साइट आया था, उससे भी देखा, चेक करो. देखा तो ये कटा हुआ पेड़ था. और वो फॉग में रेन में वो ऐसे हिल रहा था धीरे धीरे. स्काई लाइन में ऐसे धीरे धीरे हिल रहा था. तो इंसान लग रहा था. तो हम फिर आगे बढ़ने लगे. तो अराउंड 4:30 हो गया. तो आगे 500-600 गज आगे पहाड़ों में ढोक दिखाई दिया. तो मेरा एम था कि रातों रात हम किसी ढोक में घुस जाए, एंड होपफुली इट शुड बी एम्प्टी. नहीं तो दिन में दूर से दिखता है पहाड़ों में फ्रॉम फार अवे ना, दे कैन सी यू. राइट. तो माय एम वाज दैट कि बिफोर डे लाइट ना, दिन होने से पहले वी शुड हाइड समवेयर, कहीं छुप जाना चाहिए. अभी ना जंगल थे, ऐसे जगह में फंस गया. तो आवर ओनली चांस वाज ढोक में घुसना है. ठीक है. तो हम लोग जल्दी जल्दी गए, एकदम ऑलमोस्ट रनिंग करके गए और ढोक में घुस गए. उसमें 2-3 कमरा था. पत्थर, वो ढोक क्या होता है ना, पत्थर का घर होता है, दरवाज़ा भी नहीं होता है. एंड देयर वाज ऑल लीकिंग एंड स्टिंकिंग, काउ डंग, बफेलो डंग एवरीवेयर. पूरा वो उधर ही सुसु करता है. जानवर रखने का जगह है ना, बैठने का भी जगह नहीं है, सूखा जगह ना. फिर बोला ये नहीं होगा. फिर उसको पूछा और आगे कितना है, वो उसने बोला 1 किलोमीटर आगे है. मैं बोला चल, अभी हमारे पास 40 मिनट करीब है, दौड़ के चलते, वहाँ थोड़ा बैठने का जगह मिल जाएगा. फिर मैं पूछा ऑक्यूपाइड है कि नहीं. बोलता है, उसने कहा कि मोस्ट लाइकली ऑक्यूपाइड हो सकता है. ऑक्यूपाइड होने से भी इफ़ वी अलाउ द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस to be around the house only, then our secrecy will be maintained. So that was the hope. तो 2 ढोक था, एक नीचे एक ऊपर. नीचे वाला थोड़ा लंबा था, half had walls, half did not have wall. तो जैसे तैसे दौड़ते फर्स्ट लाइट से 15-20 मिनट पहले हम पहुंच गए. तो जैसे पहुंचा तो आई टोल्ड 2 पार्टी करो. एक ऊपर वाला ढोक को, जैसे ऊपर वाला ढोक खत्म होता था तो नीचे वाला ढोक शुरू. इट वाज, पहाड़ों में ऐसे घर होते हैं, तो एक दरवाज़ा. पर नीचे वाला है ओपन ढोक ऑल्सो, ओपन रूम. तो दोनों को सिक्योर करो और हम लोग मोस्ट लाइकली पूरा दिन यही हम छुपेंगे.
तो ऊपर वाला घर में एक नायक था तब, एनसी गोगोई करके, वो घुस के दौड़ के बाहर आया और पूरा राइफल रखा हुआ है, AK-47 रखा हुआ है, अच्छा ओके और लोग सो रहे हैं। अभी एज पर रिपोर्ट तो सिविलियंस आर देयर। यस अच्छा, तो मैं नीचे तरफ भागा, अभी आवाज़ भी नहीं कर सकता है, एकदम फटाफट भागा नीचे तरफ। तो इन द मीन टाइम हवलदार जोत सिंह ने क्या किया, वो जो खुला वाला रूम था उसमें 2-3 लोग सो रहे थे, सिविलियन, मोस्ट लाइकली सिविलियन। तो उनको थोड़ा उठा के पूछा धीरे से कि कोई है क्या, वो लोग बोला कोई नहीं है, मतलब टेररिस्ट नहीं है। तो फिर वापस आया और ये दरवाजे के बाहर ना ये रखा हुआ था पाइन का ब्रांच, दरवाज़ा ही नहीं है तो ठीक पाइन का ना, तो उसको वो खींच के अंदर घुसा एंड फायर शुरू हो गया, फायरिंग पूरा डट 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 फायरिंग शुरू हो गया। तो जोत सिंह वहीं गिर गया। फिर 2 कूद के निकला उग्रवादी टेररिस्ट, तब तक थोड़ा थोड़ा लाइट हो गया था। 2 जंपिंग करके निकला, हमने उधर ही जंपिंग करते वक्त हवा में मार दिया। दोनों गिरे 20 मीटर 25 मीटर 30 मीटर नीचे ऐसे जाके वही लुढ़क लुढ़क के उधर ही गिर गए। फिर मैं चिल्लाया, अभी तो फायरिंग हो गया, सरप्राइज तो ख़त्म, कांटेक्ट हो गया अभी। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, घेरो घेरो ऊपर वाला को। वहाँ तो हमने राइफल देखा अंदर। अभी ड्रामा शुरू, हमारा एक बंदा गिर गया, मैंने चिल्लाया हमारा बंदा गिरा है। फिर नीचे जाके चेक किया तो हेड शॉट, सर पे भी गोली लग चुका था, तो शहीद हो गया था उस समय। और वो गांव वाला अगर वो नहीं बताते ना, उसको अगर सच्चाई बता देता कि अंदर है, you would have never entered. So that is a sad part. बहुत झूठ, मतलब ठग दिया। And we had no laws to fix him at that time ना। तो there must be some law in this country to fix that bum. उसको फिक्स करना है। We lost a very brave commando. तो anyway, तो ऑपरेशन कैसा हुआ, फिर घेर लिया, घेर के मैं छत पे चढ़ गया। तो मेरे साथ रेडियो ऑपरेटर भी था, तो उसको बोला अभी टीम कमांडर को भी बताओ हमारा कांटेक्ट है और हम घेर रखा है, कितने हैं अंदर पता नहीं, कांटेक्ट खबर कर दो। और ये पता नहीं कहाँ से खिड़की से ना ऐसा करके ऐसा निकाला और ग्रेनेड फेंका 2 अंदर से, और हम दोनों जंप किया उधर से, छत से जंपिंग किया और फट गया वो ग्रेनेड। तो मुझे कपड़े सपड़ा में लगा होगा, उसको थोड़ा लग गया 1-2 स्प्लिंटर, वेरी माइनर, लेकिन उसको थोड़ा लगा। फिर हम आए नीचे, तो अंदर पत्थरों के बीच में से ये लोग फायर करना शुरू कर दिया। तो आई सेड टेक कवर और ये लोग निकलेगा अभी। एंड वी कुड नॉट डू एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, वी कुड नॉट फायर ऑल्सो, हम फायर भी नहीं कर सकते थे, अंदर सिविलियंस है। फिर हमने पूछा सिविलियन है, तो आवाज़ नहीं दिया, ना जवाब दिया ना कुछ किया, चुप रहा ये लोग। दे केप्ट फायरिंग। एंड एक बार मैं भी पोजीशन लिया था दरवाज़ा में ना, वी आर ऑल रेडी कि दरवाज़ा से अभी निकलेगा। तो एक कमांडो था उस समय, नायक YR लिंबू, बहुत तगड़ा कमांडो था ये भी। वो NC गोगोई भी था तगड़ा, जोत सिंह भी था तगड़ा, सब तगड़े थे। ये बंदा ने मुझे धक्का मारा वहाँ से। मैं बोला क्या हो गया इसको, धक्का मारा, वहाँ से आया टट, जहाँ मेरा सर था वहीं से निकल गया गोली एकदम। पता नहीं उसको क्या इंस्टिंक्ट हुआ, कुछ हुआ, मुझे धक्का मार के गिरा दिया, वहीं से पूरा फायर निकला। तो फिर मैं चिल्लाने लगा, देखो कोई भागना नहीं चाहिए। और फिर मैंने बोला सरेंडर करो, जो भी है निकलो, नहीं तो मैं सबके साथ सबको उड़ा दूंगा, ये मैं बताया।
तो ऐसा चलता रहा, तब तक दिन हो गए, 15-20 मिनट ऐसा हो गया, एंड दे केप्ट फायरिंग फ्रॉम, और हमने भी घेर रखा था। फिर देखा ग्रेनेड आया, 3-4 ग्रेनेड आया, ये कोई कोई लुढ़क के नीचे फटा, कोई कोई वो जो नीचे वाला ढोक के ऊपर फटा, जहाँ भी ये लोग फेंक सकता था फेंका, डुम 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 फेंका, और ये लोग फायर करता हुआ निकला। उसमें से एक था, उसका बाद में नाम पता लगा, उसके पर्स से सैफुल्ला, एक का नाम था शाहजी, द बिग बॉस, द बिगेस्ट बॉस ऑफ दिस टेररिस्ट, जो पूरा दहशत फैला के रखा हुआ था पूरा एरिया में। एंड दे वर सुपर फिट, दे शुड मूव, मतलब वेदर खराब मूव। एंड जंगल का रास्ता पूरा पता है इनको, ये गुज्जर बकरवाल तो सब इनका गाइड है, इनको पूरा जंगलों का रास्ता पता है। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ एक बात कि बकरवाल को कंट्रोल में लाए ना, और गुज्जर, इनका जो है राइट हैंड कट जाएगा उग्रवादी का इन द रूरल एरियाज, दाहिना हाथ कट जाएगा। तो ये लोग फायर करता हुआ निकला, वो शाहजी पता नहीं था उस समय शाहजी है, वो भी बाद में पता लगा। तो राइफल में उसने बेनेट फिक्स कर लिया, जैसे धावा करता है, चार्जिंग। और दूसरा जो है जिसके पास पीका मशीन गन था, उसने पूरा बेल्ट को ऐसा पहन लिया, you know, slung across the body, and they came out firing. They first threw 3-4 grenades, and they came out firing. They were offered surrender also. No. एक को हमने उधर ही गिरा दिया दरवाजा के पास, दूसरा को थोड़ा आगे गिराया, तीसरा को थोड़ा आगे गिरा दिया। हमने 5 मार दिए, बट वी हैड अ टेरिबल लॉस। तो मुझे इतना गुस्सा आया, क्यों झूठ बोला ये गांव वालों ने। उनका मैं आई थिंक 12 भैंस था, सबको मार दिया मैंने, क्योंकि हमारे पास नियम ही नहीं थे। देखा तो बच्चे भी थे, औरत थे, 3-4 women were there, and 3 I think men were there. Then they had 6 children. कोई नीचे वाला घर में सो रहा था अंदर। So it's very good we didn't fire inside. We did not throw grenades inside, you know. We did not throw bombs inside, which we could have done. So that kind of control we used to show, display. That is the way how I am going to, you know, win their hearts and mind. Like what Brigadier Deep Bhagat said, na? Right. This is what we can do at our level. सही बात है। And what is, I want to question somebody, what is the law saying? What do you do with that fellow because of whom we lost a boy? टेररिस्ट को एड कर रहा है। बिल्कुल, abetting, aiding, in 100%. तो इनका क्या उपाय है? इनको तो मैं कहता हूँ, ये लोगों को आइडेंटिफाई करो, जेल भेजो, अंडमान निकोबार में भेजो, नॉट इन जम्मू जेल, काला पानी में भेजना चाहिए। मैं उस दिन देख के आया जहाँ हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स को अंग्रेजों ने मारा है। तो व्हाट इज दैट होल प्लेस मेंट फॉर? यू सेंड दिस पीपल एंड वी हैव टू बी स्ट्रिंजेंट, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं करेगा ना, दे विल कंटिन्यू, क्योंकि वो डरता है टेररिस्ट से, और ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर इनडॉक्ट्रिनेटेड, उनका दिमाग सब हिला हुआ है। हाँ, आज के दिन, दैट वाज इन 1997, अभी हो गया कितना, 20 साल, 19 साल, कितना हो गया, 19 years, 20 years। हाँ, अभी थोड़ा चेंज हो सकता है इनके माइंडसेट में, बट वी कांट कीप होपिंग लाइक दिस ना। वी हैव टू हैव यूनिफॉर्म लॉ। That is treason. Yes. That is the worst kind of act a citizen can do. So इसमें clear cut laws and regulations has to be there, and they have to be implemented.
as early as possible. And I firmly believe उसमें से जिसने झूठ बोला था 2 थे, उसको तो पकड़ के सीधा काला पानी में भेजना है. एंड ज़्यादा हल्ला करेगा उसका फैमिली को भी भेज देना है. बिल्कुल. तो कहाँ तक हम ये मॉली कॉडलिंग करते रहेंगे? उनका ये औकात देखो. फौज को अब रात के घर में बैठा हुआ है, उस फौज को उल्लू बना रहा है और कोई फियर ही नहीं है. So that kind of mahal was there in Kashmir. We changed in 98. क्या हुआ सर 98 में? 98, we could feel the change. कभी in Delhi certain changes, political changes took place and we could feel the change in the air. अभी करके देखो. You see, then certain rules and regulations started coming slowly. So we were very happy. Very happy. So now, end of it, I lost this great Havaldar, Jodh Singh, and may he rest in peace. I got 5 of them, and that was the first success, major success. इससे पहले almost 15 ना 16 फौजियों को ये लोग मार दिया था. आई थिंक 20 के करीब को मारा. देन ये लोग बहुत कश्मीरीज को मारे, गुज्जरों को मारा, बकरवालों को मारा. दहशत कैसा एस्टेब्लिश करता है. दैट इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग. एंड दे हैव ऑलमोस्ट फ्री रन. एंड इट ऑल हैपेंड. नाउ व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, मेरा जो दूसरा पार्टी था जो उग्रवादी बन के गाँव में घुसने का प्लान था, वो लॉन्च ही नहीं हुआ बिकॉज ऑफ रेन. वो रह गए. और आई लॉन्च्ड एंड कोई हार्ड इंटेलिजेंस नहीं थे, कुछ नहीं थे. एंड इनके जो बिगेस्ट ब्लडी टेररिस्ट, उसको मैंने ठोक दिया. एंड दिस वाज अ वेरी वेरी मेजर, इट हैड मेजर implications for the Paki handlers also. Because अभी the most reliable, the best fighter, उनका the most brutal terrorist knocked off. You see, now ऐसे भी नहीं है कि सेब के पैर में सेब लगा हुआ है कि ये कमांडर गया तो दूसरा कमांडर फट से लगा दो. ऐसा नहीं है. It's not so easy it is not at all easy to replace such like people. Then some success, since this major success came to us, we were also slightly happy, satisfied. Like I told you before, it used to be very difficult to live up to the reputation of our predecessors. जो पहले लोग काम करके गए ना, तो be it in mostly in Kashmir, तो उनके काम को काम के आसपास भी करने के लिए it is to take lot of effort and lot of sacrifice. So abhi after this operation, then my 2IC came, Colonel K.A. Mohan, Veer Chakra from Sri Lanka, Kargil War veteran and Kashmir veteran, very one of the gem of an officer who later became CO. He was 2IC. He came and then we planned couple of operations. कुछ operations में मिला नहीं. अभी 3-4 ऑपरेशन में नहीं मिलता है, फिर बहुत कष्ट होता है. तो हमें तो सर्वाइव करने के लिए not only survive, to have meaning, I need to kill. I've been given a task. Like आर्मी कमांडर ने जब पहला बहादुरी अवार्ड लगाया था कि son, go and kill what? Terrorists. That is my job. That is my bread and butter. And वो अगर हर हफ्ता तो चलो दूर का बात है, हर 15 दिन या महीना में नहीं मिलता है ना, शांति नहीं है, खाना हजम नहीं होता है, तो ऐसा हो जाता है. Same is the case with our boys, commando boys now. They're hardcore.
इतना हार्ड कोर है हमारे बंदे बॉयज ना, जवान, हवलदार, जेसीओ, ओ हो, ईच गाय इज ए डायमंड, हीरा है हीरा। तो उनका भी सेम फीलिंग है। तो अब 1 महीना हो गया नहीं मिला, तो एक दिन एक यूनिट था हमारा में, एक यूनिट के कंपनी थे, तो टवाइसी ने बोला मुझे कि आप कंपनी में जाके रहो, हो सकता है कुछ खबर मिल जाए, कुछ हो जाए। फिर खबर आते नहीं, कम आते थे। तो मैं जाके रह लिया 20 बंदों के साथ कंपनी में। अच्छा। तो हाँ, एक दिन उनके पोर्टर आए, कोई लोकल पोर्टर, कंपनी में मतलब? मैंने कंपनी बेस बनाया था हाँ। गांव के बाहर, अच्छा एक इन्फेंट्री यूनिट था। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, ओके। सो उनके लोकेशन में हम रहने चले गए। ठीक है, So, लाइक नॉर्मल सोल्जर्स। या इन्फेंट्री, राइट, ओके। और उनके लोकेशन में हम रहने चले गए। तो एक दिन बोला कि पोर्टर आया है, और उनके ऑफिसर नहीं थे, सीनियर जेसीओ था। जेसीओ को बोल रहा है कि उधर बगल वाला गांव में ना, मरा में कुछ हरकत रेगुलरली हो रहा है, 5-6 लोगों का। So they used to have this 5-6 ना, it used to be like their सब यूनिट, इनके सब यूनिट होते थे 5-6। एंड जब कुछ बड़ा कांड करना है, ये लोग इकट्ठा हो जाता था, लाइक दैट। तो मैंने भी बात किया उससे, यंग लड़का था, उसने थोड़ा बहुत बताया, बट आई डिड नॉट बिलीव हिम 100%. In this kind of activity, you can't believe anybody. You have to be on your guard, and you have to take everything with a pinch of salt. तो एक दिन आया, बोला मेरा क्या होता था कि आई यूज्ड टू फाइंड आउट, अगर घर में आता है, आर दे रेगुलरली कमिंग, फ्रॉम वेयर आर दे कमिंग, हु इज रूट दे यूज्ड टू यूज रेगुलरली, या 2 दिन में या 3 दिन में। अगर वो 4 दिन में एक बार आता है, पक्का आता है, तो मैं 4 दिन रहूंगा उधर, ठोक दूंगा मैं। अगर घर में वो 4 दिन में आता है, तो आई कैन मेक ए प्लान। अगर वो इरेगुलर है, रेगुलर ही नहीं है, तो कैसा प्लान बनाएगा? इट इज नॉट इजी। सो बेस्ड ऑन द इनपुट, based on the pattern, I can make a plan, actionable plan. So then I was also getting restless. तो कैंप के अंदर ही, बाहर ही, बर्फ में ना, हम फायर करते थे, स्नो में फायरिंग करते थे, बोतल रख के, टू कीप एवरीवन शार्प ना। कुछ एक्टिविटी तो करना चाहिए। ठीक है, तो शूटिंग। हाँ, कैंप के बाहर ही। और ऐसा नहीं कि पी स्टेशन है, आप मर्जी पीटी कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है वो सब। यू कैन डू। टेंस माहौल है तो ये ठीक है, यू आर जस्ट फायरिंग सम हाँ, बॉटल्स। वो कहीं से ग्रेनेड फेंक देगा, आरपीजी मार देगा, तो तो प्रॉब्लम। ठीक है, यू हैव टू बी ऑन गार्ड। सो दिस पोर्टर केम, देन रात को मैं बहुत सोचा कि इसका बातों में दम है नहीं है। नाउ this was a spur slightly going down to Suran River. Down below बफलियास है, इधर मारा गांव है, इधर सोकी की दमेल करके देयर इज टू बी 4-5 हट्स। तो दिस इज द टॉप, लाइक दिस इट वेंट डाउन। यहाँ मारा गांव, बिग विलेज, यहाँ सोकी की दमेल करके 4-5 हट, अगेन काइंड ऑफ ढोक। वो मेरा माथा में क्या हुआ मुझे अभी तक पता नहीं। तो 12 बजा था, 1 बजा था, मैं बोला चल रेडी हो, गेट रेडी, कि ट्राई करेंगे, विल ट्राई। तो
Then I thought, Mara is too big a village for me to address. Why not I address the opposite side? It's not very far. And that is a place where they could see, overlook Baflias. Okay. Vantage point है. Vantage point. So that clicked inside me. तो हम क्या ऐसा रेत जा रहा है ना, ऐसे नीचे, तो यहाँ से इधर कैंप है, यहाँ कैंप है. To be unseen from this side, we went running 20-25. It took us about 2 hours. 2 घंटा लगा. तो जैसे यहाँ ऑन टॉप ऑफ ये सोनी सौकी की दमेल के ऊपर पहुँच गए. हम इस तरफ थे. यहाँ से 3 पार्टी कर लिया. तो बोला थोड़ा ऊपर चढ़ जाओ और नीचे रश करते. तो 5-6 घर थे. तो आई वॉज इन द सेंटर. राइट में एक पार्टी था, लेफ्ट में एक पार्टी. हम वी रश एकदम रश किया गांव के तरफ, सो दैट एवरीवन सीज. एंड थोड़ा देर गया, 10-15 मिनट हो गया. राइट साइड ढक 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 कॉन्टैक्ट हो गया उनका, पूरा फायर फाइट. तो हम भी दोनों पार्टी घुमा, भागता हुआ गया उस तरफ. भागते हुए गए. वहाँ जाके देखा एक कैप्टन साहब था, वेरी गुड ऑफिसर. और आई हैड टेकन फ्यू बॉयज ऑफ दैट लोकल यूनिट ऑल्सो, उनको भी साथ ना, सो दैट दे लर्न. देखा तो ये लोग एक जगह में ऐसे कटिंग था, पूरा झाड़ीदार एरिया, कटिंग ना. और ये लोग काइंड ऑफ एल शेप, पहाड़ के ऊपर ना एल शेप, खूब फायर कर रहा है झाड़ियों के तरफ. तो मैं जाके पूछा तो बोला हाँ ये 5-6 थे लोग और हम इधर बैठे हुए थे. हम नज़दीक आया तो वी ओपन फायर एंड दे ऑल्सो ओपन फायर. ये लोग भी फायरिंग किया और वो लोग सब ये झाड़ी के अंदर घुस गए ऐसे. तो हम आए, खूब ग्रेनेड फेंका, तो हमारे ग्रेनेड फटते नहीं थे. वेरी सैड. ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले फटते नहीं थे. अच्छा. 10 फेंकेगा, 1 फटता था. अरे. सो इट इज लाइक ए पीस ऑफ रॉक. ऑन देन हमने बहुत फायर किया वो झाड़ियों के अंदर, और एक नाइक को हेडशॉट मार दिया. क्योंकि हमारे वी वर मूविंग अराउंड, दे आर ऑल इनसाइड द बुश. कभी इंजर्ड है नहीं है पता ही नहीं है. सो अंदर से मारा, हेडशॉट मारा, वो 30 फुट नीचे पत्थरों में जाके वो एक डेड हो गया. वो लोकल यूनिट का था. सो डाइट. एंड आफ्टर दैट धीरे अभी अंधेरा हो गया. हमने बोला कॉल ऑफ करो, अभी अंधेरे में कुछ नहीं करेंगे. तो वी वेंट बैक एंड इट वाज ए वेरी सैड नाइट. अगेन एक बंदा शहीद हो गए लोकल यूनिट के. दे वर फीलिंग वेरी बैड नेचुरली. उसका नाम था नाइक नीलकांत रेड्डी. तो जैसे फर्स्ट लाइट हुआ अगला दिन हम पहुंच गए. फिर पहुंचा. फिर मैं आई डिसाइडेड, नॉर्मली क्या होता था, आई नेवर यूज्ड टू गो आफ्टर इंजर्ड पीपल. तो इतना फायरिंग हुआ ना, मुझे लगा कि इंजरी हुआ होगा, बट दे वर स्टिल फायरिंग बैक. तो रात भर फायरिंग चल रही है वापस? नहीं, रात भर तो हम चले गए छोड़ रात भर शांति. तो आप हाउ डू यू नो दे विल स्टे एट द सेम प्लेस? आई डोंट नो. दे कुड हैव गॉन समवेयर व्हाटएवर. या अच्छा, ठीक है. उपाय नहीं है. फर्स्ट लाइट पे वापस आए? रात को नहीं, रात को बहुत मुश्किल है. रात को बहुत मुश्किल है. ये सब किताबों में और कहने के लिए होता है. नाइट में देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड एम्बिगुअस सिचुएशंस. सो मैंने आई सेड कॉल ऑफ, गो बैक. एंड वी हैड डिनर, स्लेप्ट. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट लाइट हम फिर आ गए. देन आई सेड आई एम गोइंग इन. सो one guy ahead of me
हवलदार राजवीर, मी एंड द रेडियो ऑपरेटर. हम बोला हम 3 जाएंगे, विल चेक इट आउट. जितना फायर करना था कर लिया. अभी निशाना नहीं है. थोड़ा घुसा तो देखा तो एक वेरी सोफिस्टिकेटेड पाइप टाइप था. फिर मैं पढ़ के देखा उधर झाड़ियों के अंदर लिखा हुआ है SA-7 ग्रेल सरफेस टू एयर मिसाइल. ओह, इससे पहले था कि र्यूमर था कि उनके पास शोल्डर फायर्ड मिसाइल है करके. ये पहले बार मैंने भी देखा मेरा लाइफ में. आई हैव नेवर सीन इट इन द आर्मी ऑल्सो, बिकॉज दीज ऑल बिलोंग टू द एयर डिफेंस पीपल. राइट. सो मेरे तो भरोसा नहीं हुआ. उधर SA-7 लिखा हुआ है, बैटरी पैक 2 था, प्रॉपर शोल्डर फायर्ड मिसाइल. देन आई सेड रख लो इसको रख लिया. फिर आगे गए. आगे जैसे झाड़ियों के अंदर इतना झाड़ी, थिक बुश. थोड़ा स्लोप में हम लोग भी धीरे धीरे आवाज़ नहीं करके धीरे धीरे एक एक कदम, लाइक एनिमल्स हम भी ऐसे जा रहे. तो देखा तो धूम करके एक ग्रेनेड फटा हमारे बीच में. उसमें मेरा राजवीर को थोड़ा लग गया, मुझे भी यहाँ लगा. इस पे चाइनीज ग्रेनेड होगा, स्प्लिंटर लगा. तो ऐसा था पहाड़. तो हम लोग रेडी हो गए. जैसे फटा 3-4 गज में, 5 गज होगा, झाड़ियों के अंदर से मैंने देखा एक बंदा टेररिस्ट देखा. वो भी निशाना ले रहा है मेरे ऊपर. मैंने फायर किया, टप मिस, टप मिस, टप मिस. पूरा अलार्म, मेरा तो बाल खड़े हो गए. वो भी निशाना ले रहा है और मैं इसी पोजीशन में था. फायर किया, टप मिस, मिस मिस. उसके पत्ते राइट में, सर के राइट में जा रहा है. एंड वो धीरे से मेरे तरफ बैरल कर रहा है. उसी ने ग्रेनेड फेंका था. He threw the grenade and it was just about 5 yards, but बुश था. तो मेरे तरफ निशाना ले रहा है. मैंने अभी राइफल को रख दिया. ऐसा था, फायर कर रहा था ऐसा. तो मैं ऐसे लेट गया. ऐसे लेट गया और मैं अपना दाव निकाल लिया. अभी तो सिचुएशन खराब है. इधर देखा, इसका तो खून खून हो रखा है. तो मैंने बोला आवाज़ मत कर कोई. तो इन द मीन टाइम वो मेरे ऊपर निशाना लिया. ऐसा था, निशाना लिया. निशाना लेके जैसे ऐसा किया, डर फायर किया. वो मेरा सर के ऊपर से गया, सर के ऊपर से. मैं फिर बोला आवाज़ मत कर, कोई आसपास आएगा करेंगे कुछ. तो धीरे धीरे वो फिर खिसक गए नीचे. फिर इसको देखा, राजवीर को देखा, खून खून हो रहा था. वो भी एक हाथ से फायर कर रहा था ऐसे, पूरा ब्लडेड, ठक 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 करके फायर कर रहा था. फिर एक आगे था, राजवीर मेरे राइट में था, ये रेडियो ऑपरेटर. तो वो हिल गया थोड़ा सा. तो उसने बोला कि साहब निकलो यहाँ से, निकलो, ये कैजुअलिटी करेगा. अभी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में क्या होता है ना, आई कैन किल हिम टुमारो. I can kill him after 6 months also. Yeah, 2 months, 3 months. But we should not lose unnecessarily our own guys. We have a little bit of time. So now went out. अभी overall क्या हुआ? I lost a boy, Neelkant Reddy. My Rajveer, one of the bravest commando, injured. Not badly injured, but injured. I almost died in this. Then we captured a SAM-7 missile. I said nothing doing. ये ऑपरेशन को विल ब्रेक सम रूल्स. थोड़ा रूल तोड़ेंगे.
पहले तो इस बंदा के पीछे गया, जहाँ से गया थोड़ा थोड़ा खून खून लगे हुए थे पत्तों पत्तों में, ऐसा एकदम शार्प, ऑलमोस्ट लाइक ए क्लिफ। हम भी पकड़ पकड़ के उतरे, जहाँ जहाँ देखा वो फिर दिखाई दिया, उधर देखो पत्ते हिल रहे, फिर थोड़ा नज़दीक जाएंगे, टप टप लेफ्ट राइट फायर करके उसको हरकत कराते थे। तो जैसे दिख गया अराउंड 200 मीटर्स नीचे, धीरे 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 जाके वो भी बचने का कोशिश कर रहा है, उसको ठोका, ऐसा करके 5 ठोके, हर ब्लड लाइन के पीछे गए, हर ट्रेल के पीछे गए, छोड़ा नहीं किसी को। आप 3 बंदे, जिसमें से एक इंजर्ड? 3 नहीं, हमारे और भी बंदे थे। अच्छा। इंजर्ड तो साइड हो गया ना, उसको तो एवाकुएशन भेज दिया। 5 बंदे ऐसे? 5 नहीं, हमें मेरे साथ थे ये 20 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन गए हम लोग 4-5 लोग। 5 मार दिया आपने? 5 मार दिया, और सैम 7 मिसाइल भी कैप्चर कर लिया। तो अभी थोड़ा दिल में तसल्ली आया कि चलो, अपना एक लॉस हुआ ट्रेजिकली, लेकिन सक्सेस भी मिला, लेकिन कोई गांव वाला ने उल्लू नहीं बनाया। यू सी, इट इज फाइट में हुआ बिटवीन अस, इट्स ओके, नो थर्ड पार्टी हैज मेड ए चार्ली आउट ऑफ अस। सो आई फील दिस इज वन ऑफ द वेरी यूनिक ऑपरेशन। मेरे ख्याल से ये पक्का एक प्लेन को गिराना था, श्योर श्योर। एंड दैट मीन्स इसके जो फायरर था, हाईली ट्रेन्ड मिसाइल फायरर। कैन यू इमेजिन अ टेररिस्ट मिसाइल फायरर? इट इज पॉसिबल ओनली विद द तालिबान, ओनली विद द तालिबान, और सर्विंग ऑब्लिक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, शक ही नहीं है, वो भी ठोका इसमें। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ ना, आने दो, ठोकेंगे सबको, सबको, किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा काम है, और हम तो मारेंगे मारेंगे। सो यू सी, इवन इन ए वैक्यूम ना, नो इंफॉर्मेशन, even when the whole administration etc, they had no clue only, and no intelligence, administrative support, almost like you could say like थोड़ा बच्चा टाइप, ऐसा सिचुएशन में भी, एंड एलियनेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इस हालात में भी वी कैन गेट सक्सेस। सो दैट we have to be daring and become go getter. खराब मौसम में हरकत करो, बैड वेदर में मूवमेंट करो, जरूर मिलेगा, कामयाबी जरूर मिलेगा। So that was 2 of my major operation in that area, and that also came at a time, you know, when they had total upper hand. You could say supremacy in that kind of warfare, when हमारे फौज को दबा के रखा था। मैंने निकाला सबको, इसको जब ठोक दिया ना, बड़ा ऑपरेशन सक्सेस मिल गया, हमारा हौसला भी बढ़ गया, हमारे बाकी के फौज के। And they also started becoming more aggressive. They started operating at night. They started operating, you know, seeking them. So that is how things change for us. So it has a lot of psychological effect on them. It lowered their morale. Hamara, it upped our morale. It's like that. And imagine, उनको तो स्पेसिफिक टास्क दे के भेजा था। कोई ISI के होगा, कोई SSG के होंगे कि एक प्लेन गिरा के ही आओ। इमेजिन, उसको हमने भेज दिया, जहाँ वो उनको भेजना है वहाँ भेज दे। तो my idea was very clear. My idea was very clear, and I've been slightly fortunate, and it is all destiny. कोई प्रॉपर मतलब इंटेलिजेंस के बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस नहीं थे, यू नो, जस्ट ऑलमोस्ट लाइक गट फीलिंग एंड दोज थिंग्स। मैं अभी कभी भी नहीं बोलूँगा कि मेरे में दिमाग ज़्यादा है, नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसमें दिमाग का खेल कहाँ है, हरकत का है, एक्शन का है, गट इंस्टिंक्ट। सर तो इसके बाद हम अबू जुबैर वाले इंसिडेंट पे आते हैं। हाँ, ये काफी ड्रेडेड टेररिस्ट था। यस यस। आपने बताया मुझे इसने 30 गुज्जरों को मारा था। ये किल्ड हाँ, ये 3-4 ढोक में घेर के उनको जिंदा जला दिया था। आई थिंक गुजर्स वेर नॉट सपोर्टिंग द मूवमेंट उनका, इसलिए टू टीच देम ए लेसन प्लस टू आई थिंक probably he had some animosity with them फॉर सम रीजन। for whatever reasons, you know। उनको ऑलमोस्ट आई थिंक 30 के करीब को मार दिया। तब एक सऊदी अरबिया से कोई आया मेरे पास, अच्छा। तो एक था होम एंड हर्थ का मेजर साहब, वेरी गुड मेजर साहब। वो जहाँ भी है ही नोज whom आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसने बोला कि उसने लेके आया, बोला ये ही वांट्स टू मीट यू somebody फ्रॉम सऊदी अरेबिया। no, he local who was working in Saudi Arabia came back, ओके। लोकल कश्मीरी का है। गुजर गए। ओके। So he came and told me कि he wants to meet me। ओके। बाकी फौजी भी थे, बाकी फौज थे, आरआर वगैरह था, सब बहुत कुछ था फौज। उसने बोला मुझे मिलना है, तो मैं बोला लेके आओ। तो मिला, बोलता एक आदमी को मारना है। बोलता किसको मारना है, हमारा काम ही वो है अबू जुबैर। अच्छा, तो पता है कहाँ है? मतलब मुझे थोड़ा आइडिया है कि 3 जगह में हो सकता है, ऐसा बोला। फिर मैंने मैप खोला, फिर उसका इंफॉर्मेशन को मैंने मिलाया और मैप के ऊपर फिर, और बाकी कोई इंटेलिजेंस था ही नहीं। आई सेड व्हाई नॉट। देन मेरा स्टाफ कॉलेज में एक दोस्त था, ही वाज ए पायलट। देन आई रियलाइज दैट एक पोस्ट है, बहुत दूर का पोस्ट है, गांव से 8 घंटा लगता था। कोई आरआर कंपनी प्लाटून लोकेशन था, एंड दे यूज्ड टू स्टे इन बंकर टाइप ऑफ लिविंग। तो मैं बोला उधर अगर पहुंच सकता है अनडिटेक्टेड तो कुछ हो सकता है, मसला बन सकता है। सो गांव के थ्रू रोड से उतरेगा, क्लाइम करेगा, कोई गांव आएगा या जंगल आएगा, देख लेगा ये लोग, और ठक ठक खबर पहुंच जाएगा। तो इनका जो है वीकली हेलीकॉप्टर सॉर्टी जाता था विथ सप्लाईज, एंड कभी कभी फट से भी जाता है, कोई कैजुअलिटी को इंजरी वगैरह हो गया, उसको एवाकुएट करने के लिए। ठीक। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, एक सॉर्टी के नाम से मुझे ले जाओ और मेरे साथ 15-16 बंदे ले जाओ, इंक्लूडिंग दिस गाय। ठीक है, इन्फॉर्मेंट। या तो हम गए, एंड वी ऑलरेडी टोल्ड दैट प्लाटून, उनके बॉसेस को बता दिया कि गांव वाला आसपास नहीं आना चाहिए उस दिन। ठीक है। ये लोग काम शाम के लिए बुला लेते हैं ना। ठीक है, वो फिर पता चल जाता। हाँ, बाहर के लोग आए हुए हैं। ओके। तो क्वाइटली हेलीकॉप्टर वेंट, लैंडेड, एंड वी ऑल क्विकली रश्ड आउट and entered into the bunkers. Okay. And helicopter went back. So far, so good. Success. Still, I was apprehensive. किसी ने दूर से देख तो नहीं लिया? You know, दूर दूर से दिखता है पहाड़ में, और वो भी कोई दूरबीन से देखे तो देख लेगा। फिर भी hoping like hell. And now you'll not believe. Then started raining. नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स बारिश शुरू, और हम वी वर स्टक इनसाइड, हेवी रेन। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। बस हम लोग भी क्या, रात को निकलते थे, थोड़ा बॉडी वॉडी हिलाते थे, पुशअप वगैरह करते थे, स्क्वाट एक्सरसाइज थोड़ा बहुत ना, बर्पी सरपी मारते थे। फिर तीसरा रात मैंने बोला नहीं, इतना देर तो इंतज़ार करने से नहीं होगा, बिकॉज इवन दिस जो इन्फॉर्मेंट था, सोर्स था, he was also in a hurry. He also had a flight to catch.
So third night I launched. And in the meantime 3 दिन ये लोग गांव वालों को बुला नहीं सकता है, पोर्टर सोटर ये सब, तो उनका भी तकलीफ हो रहा है। तो हम लॉन्च किया, रात भर चले, फिर हाइड आउट बना के छुप गए, फिर रात चला पीर पंजाल की तरफ, वेरी हाई माउंटेन्स, इन हाई अल्टीट्यूड क्लाइंबिंग वेरी डिफिकल्ट, सांस फूलता है बहुत। तो सेकेंड नाइट जाके एक जगह में चेक किया, इट वॉज 2/3 मून, तो रात को चलना भी थोड़ा इतना डिफिकल्ट नहीं था। एंड दिस सोर्स न्यू द जंगल का रास्ता। सो एक जगह ढूंढा, नहीं मिला, फिर आगे गया, ढूंढा, नहीं मिला, देर ऑल ढोक काइन। देन उसने बोला लास्ट ट्राई करते हैं एक जगह, वहाँ लेकिन थोड़ा आदमी लोग बसता है। तो फिर हम जंगल में छुप गए, फिर उसके बाद रात भर गया, उस जगह को हमने सुबह सुबह घेर लिया, अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड बेस ऑफ एकदम पीर पंजाल के टॉप दिख रहा था उसके नीचे, एंड थोड़ा सा मिडो काइंड ऑफ थिंग, पैस्चर लैंड, गाय भैंस घूम रहे थे। एंड सुबह सुबह देखा एक बंदा निकला राइफल के साथ हाथ मुंह धोने के लिए, मैंने सिग्नल दे दिया, वी जस्ट रैन, नॉक्ड हिम ऑफ, एंड कमरा के अंदर जाके ठक 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 उधर ही गिरा दिया। हम टोटल 3 मारे, उसमें अबू जुबैर मिल गया। तो इमीडिएटली इन्फॉर्मेंट को मैंने बोला, देखो हमारे पास पैसा वैसा भी ज़्यादा नहीं है। बोलता जनाब पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरा काम हो गया। आई स्टिल रिमेंबर हिम, हिज सेंस ऑफ पर्पस, his sense of belief in me and faith on us. And उसके बाद हम नीचे आए वापस, it took us almost 9 hours to come back. वहाँ सेक्टर कमांडर था, वो बार बार मुझे पूछ रहा है, ये अबू जुबैरी है ना, अबू जुबैरी है ना। हमारे कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ इस बार, टचवुड। तो मैं बोला सर मुझे भी पता नहीं, वो सोर्स ने तो बताया अबू जुबैर है, I don't remember him, I don't know him. तो if it is Abu Jubair, it is very good, I am very happy. उसके बाद GOC साहब आए, जनरल GD बक्सी साहब, पूरा ऐसा मौज करके इन लोगों को खत्म कर देंगे ऐसे बोलते थे वो। और उसने थोड़ा इंटरव्यू दिया टीवी के ऊपर, मुझे बोला बैंगिंग, वेल डन। I still remember those days, huh? JD बख्शी साहब मैं बहुत मानता हूँ, एंड उसके जैसे फौजी बनते बहुत कम है, कम लोग हैं। And he had a brother who died in a war. Yes. And salute to him. Sir, आप जहाँ भी हो, salam to you. And so overall, this operation was a very big success, and I feel a lot of satisfaction in this. So, Poonch Rajouri sector, then these were the major operations for me. And the tide started turning. Then we slowly grabbed the upper hand. The force. Yes. We started, and things started changing, by 98, new government came, and more, less of bullshit and more of dum that came. सर क्या मैं आपसे कुछ रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? रैपिड फायर तो नहीं, शॉर्टर क्वेश्चंस जिसमें Yes, why not? सर एक क्वेश्चन तो है जो, फॉरगिव मी फॉर आस्किंग एंड आई डोंट वांट टू टेक लिबर्टीज, स्टॉप मी वेयर यू वांट टू, बट आपने कभी किसी को आंखों में आंखें डाल के देख के, हैव यू किल्ड देम? Yes, हाउ इज इट लाइक? it was knowing whom I killed. It was very satisfying. Who was it, sir, that you killed? He was a terrorist.
तो एक टेररिस्ट था सर, वो इतना why was it so satisfying? क्या उसने कुछ ऐसा किया था जो he knew personally he had done? All of them, they did something or the other. कोई innocent terrorist है क्या? सही बात है. वो जैसे वो उल्टा सीधा innocents को मारने लगा ना, they are marked. They are marked. जब किसी को मारा जाता है, somebody is getting killed, Mm-hmm. what happens when at the moment of death? I mean, I'm saying, is there something that happens? I've heard this in the interview of killers actually, but on forensic psychology criminal side, you can see the life leave the eyeballs and धीरे धीरे आंख खत्म होती है, मतलब जान निकलती है शरीर से. अब I don't know what sort of death these people get or they deserve, but is there anything particularly strange or different that you notice when somebody dies in front of you, because you have seen death much more than normal people? No, I have no comments on this. I have absolutely no idea what you're talking about. Mhm. So that is a subject, I've never been aware of. Okay. So what is the most painful way to die For whom? for the person getting killed? For terrorists, I think they know it is coming to them. Mhm. For I am a Fauji, it is likely to come to me. It is slightly different for others and Faujis and, whose profession is to fight. What is the easiest way to kill them? Headshot? No. No. Easiest way to kill them is poison them. Poison them. Of course. Easiest for them. No, for us also. For us. What the US did. Oh. In Vietnam, they use napalm. And in Iraq, they use all poison gases. Achha, poison gases. Yes. Mustard gas. So many ulta-pulta gases they used. Yes. They used napalm. They burned them. They burned entire villages. Of course. Now you are talking about one-to-one. Yes, 1-to-1. But that is what they did. And what is the easiest way to kill? Poison somebody. ऊपर से फेंक दो या जला दो, जो भी जला दो या पानी में मिला दो. पानी में मिला दो. Those kind of thing. पानी पिला दो, खाना खिला दो. Is a gunshot more painful or is a knife stab wound? I don't think so. Gunshot में तो I think the human body को पता ही नहीं लगता है. Like headshot हो गया या heart में हो गया ना. फिर instant होगा वो तो पता ही नहीं लगेगा. I think they don't feel the pain also. The impact is so sudden and so forceful. I've seen a guy getting a bulletproof jacket पहना हुआ था. उसको AK-47 का गोली लगा इधर. वो तो 15 फुट पीछे उसको धक्का मार दिया गोली ने. इतना फोर्स है, लेकिन वो बच गया. अच्छा. There was a big dent. वो गिर के एकदम आधा मरा टाइप हो गया, लेकिन वो बच गया. I've seen that happen. So injury will always be more painful. Injury. But if it is instantaneous death, फिर तो easy है. और तो पता ही नहीं कैसा होगा. That is. सर जब बुलेट अंदर जाती बॉडी के, तो मैंने सुना है कि वो फैलती है. नहीं, not all the bullets. Some go clean through. Some bullets are there. Okay. So they tumble. अच्छा. Like 9 mm and all, millimeter, 9 millimeter and all. They tumble. Slightly low velocity. Okay. Low velocity bullets, na? So they tear apart more. अच्छा. They have the tearing effect more, so they grievously injure you. I see. I think nowadays they have developed more sinister kind of ammunition, which will go in and burst. अच्छा. That kind of thing. And the high velocity bullets, they go through and through. So if it is not hitting a vital organ, the chances of survival is more. But imagine a bullet going and tumbling. गोल गोल घूम रही है. गोल एग्जैक्टली नहीं है, वो तो थोड़ा रेक्टेंगुलर है. राइट. थोड़ा लंबा भी होता है ना. तो वो घूमेगा ना और डैमेज करेगा वो. So the high velocity bullets, they enter
through a small hole, Hmm. and they come out, larger hole. Right. So that important question you asked me was, if it is instantaneous headshot or shot to the heart, things like that, I think animal or human being, they don't get to know only. पता नहीं चलता. And it is over. Hmm. Hmm. आपको सर कभी तरस आया किसी को मारने से पहले? नहीं, नहीं. नहीं, मैं आने भी नहीं दूंगा. Hmm. But I have to be convinced. First, I have to be convinced that it is my duty and they deserve it. I got to be convinced. After that, we have to be merciless. Absolutely merciless. तो बीच में सेंटिमेंटल नहीं हो सकते हम. तो होना भी नहीं चाहिए. सेंटिमेंट का जगह है ना, अपना घर में करो, दोस्तों के साथ करो. अभी आप दुश्मन के साथ सेंटिमेंट दिखा रहे हो, वो भी खराब दुश्मन, जिसका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, वो आर ब्रूटल मर्डरर्स, क्रिमिनल्स. उनके साथ आप सेंटिमेंट दिखाओगे, वो लड्डू खिलाएगा फिर आपको. सर अगर आपका इफ यू हैड द ऑप्शन ऑफ अ वन-on-one combat, one-on-one, would you prefer gunfight or knife fight? Same No. weapon with both, of course. Now, me being a tribal from Arunachal Pradesh, from northeast, Sir. we are used to using dao. Now, when we use dao, the most difficult thing is to cut bamboo. Right. Bamboo is difficult to cut. So when you start cutting bamboo, you learn how to use the weapon. So from childhood, we know it, how to use weapon, dao. It's like a kukri, bigger kukri. Mm-hmm. So I used to carry this in operations. अच्छा. Yeah, I carried this. I carry. So, आपने यूज करी सर ऑपरेशन में कभी? yes, of course. करनी. अच्छा. That is how in that operation I pulled it out. अभी पता ही नहीं कहाँ से निकलेगा, झाड़ियों में से काटना पड़ेगा. So gun also, if it is very close range, so handgun is better, close range में. And I have seen AK-47, if you fire in bursts, it is mostly inaccurate. So we used to fire single tap, double tap, like that, tuck, 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 that way we used to fire. Both the shoulders. We used to fire like that. So that question of you asking me knife fight and this fight, it's a very hypothetical question, I think. Yes, it is जिसका जवाब मैं ऐसे clearly नहीं दे सकता हूँ. But at the same time, I will say, as fighting men, knife fighting has to be also taught. It is not easy. It's not easy to use a knife effectively. It has to be taught or learned. I agree with that. Okay. क्या ये सच है कि is it true that some terrorists, they carry cyanide and they will consume it if captured? I don't know. I don't think so. This Islamic terrorists, I don't think they believe in poison. अच्छा. I don't think. See, ये poison में more hardcore probably assassins and all, na? वो लोग, I think they use like LTT used. What I heard, my seniors told me. And I don't think this jihadists and so-called pseudo-jihadists and Islamists, ये लोग मुझे लगता है यूज इसका एनकरेज नहीं करता है, मुझे लगता है. इनका प्रेफर्ड मेथड क्या है सर? What do you think? इनका प्रेफर्ड मेथड क्या है? टू डाई फाइटिंग. Kill and die. That is advocated for them, I think. क्या आपको कभी किसी एडवर्सरी के साथ लड़ते लड़ते उसके लिए आया एज अ फाइटर कि दैट्स गाय इज अ वर्दी एडवर्सरी? Yeah, Saji was. Saji was. Yes. Jubair was. Jubair also fought. वो हट के अंदर लड़ा, वो भी फायर कर रहा था.
वो भी लड़ा। When you are firing और जब गन फाइट हो रही होती है, is there communication at all? गाली वाली बात, चिल्लाना, verbal signals, anything? बिल्कुल। अच्छा, चल रहा होता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल। बिटवीन अस, अमोंगस्ट अस, बिटवीन द टेररिस्ट एंड मी, हम लोग भी बात करते। किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है? हाँ, हम लोग उर्दू हिंदी में बात करते। अच्छा, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल? गाली गलौज भी होता है। पहले बार तो पता लगा मेरा, आई वॉज चंडीगढ़ में था, तो रेडियो सेट में मैं एक टेररिस्ट के साथ बात कर रहा था, अच्छा, तो वो भी गाली दे रहे थे, मैं भी गाली दे रहा था। बाद में मेरा एक हवलदार आके बोलता है, साहब सुनो, हमने रिकॉर्डिंग किया है। बोलते क्या है रिकॉर्डिंग? तो वो सुनाया, बोलते ये किसका आवाज़ है? बोलते आपका। इतना खराब है। What is the most brutal thing that you have ever seen? आई हैव एवर सीन Yes. इन द सेंस। आपने अपनी आंखों के सामने देखी है। हाँ, The most brutal thing that a human has done to another human. ओ वो तो प्राणकोट में किया था ना, ये लश्कर वाले। वो दे किल्ड 22 और 24 हिंदूज। इसमें द यंग लेडी वाज, प्रेग्नेंट लेडी वाज देयर, 18-19 years. हर belly was cut open and the unborn child na had a stake. So I retaliated. I was I was requested and I volunteered to retaliate. तो मैं ज़्यादा तो नहीं पूछूंगा, बट मैं इतना पूछूंगा, डिड यू गिव देम व्हाट दे डिजर्व्ड? Of course, I gave them double of that dose. आई कैन ओनली थैंक यू फॉर दैट। Thank you, sir. It's my duty, our duty. यू आर डिस्क्राइबिंग एन ऑपरेशन, अब आपने कहा एबनॉर्मल लुकिंग फौजी आ गए। हाँ हाँ हाँ। आपने ये भी मुझे बताया, कई बार डिस्कशन हुआ है कि अलग दिखते हैं स्पेशल फोर्सेस वाले। Yeah, they are tough people. They're very tough people. You know, they look different. तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि They don't look big and all. No, हाँ, no, no. हाँ, no. हाँ, They're ये all wiry, small, स्मॉल, patlu, and eyes are different, you know. आईज आर डिफरेंट। And ये फेस में भी ये सब अंदर अंदर होगा, ऐसे खाना ही नहीं मिलता है, ऐसे टाइप के बंदे। हाउंड, यू नो, दे आर लाइक चीता टाइप ना, पेट भी इतना पतला पतला होगा। सो इट्स नॉट लाइक कि ऐसे ऐसे मतलब बहुत मस्कुलर हो, ऐसा नहीं होता है। सर, अगर आप सामने वाले किसी स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर को एनकाउंटर करते हो, आपको नहीं पता कि वो है, आप पहचान पाओगे? हाँ, थोड़ा हरकत से थोड़ा आइडिया होगा। किस टाइप का हरकत करेगा सर वो? तो उसका चाल अलग होगा थोड़ा। अच्छा। इट विल बी स्लाइटली मोर कॉन्फिडेंट, मोर एथलेटिक। Okay. It's all because of results of physical All that training. combat training, physical training, you know, extreme, I will say extreme physical training. Extreme physical training. No, it's not like that only, na. Officers, na, you have got to maintain. Right. कई लोग, you know, even some in special forces after some time ना थोड़ा कमजोर हो जाता है, नेग्लेक्ट करते हैं, ऐसा भी है। Right. But और मेजॉरिटी नहीं है। but these guys, they remain very hard for much longer. You have to be. Have to be. You have to be. सर, अगर आप तो पाकिस्तान आर्मी का स्पेशल फोर्सेस एसएसजी है, और आपका कभी इनके साथ आमना सामना हुआ है? तो हुआ होगा, इन्हीं में से होगा, कोई एसएसजी वाले होंगे। कोई आपको लगा कि ये अच्छी ट्रेनिंग है और इस टाइप का? यस, लगा, जरूर लगा। अच्छा, जरूर लगा। सुपर फिट? सुपर फिट तो फिटनेस तो पता नहीं चला, हाँ, बट दे आर डेयरिंग ना, फियरलेसनेस उनमें भी है। अब इतना फौजियों के बीच में हमसे पंगा ले रहा है वो, इफ इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ पागलपंदी और यू नो गट्स, व्हाट इज दैट? सर, आपने मुझे कहा कि
इक्विपमेंट कभी कभी डिफंक्ट होती है, दिस ग्रेनेड्स दे डोंट इवन गो ऑफ सो मेनी टाइम्स, Yeah. इट्स हॉरिबल। So मैं तो कैप्चर्ड ग्रेनेड आई टू यूज। अच्छा, वो बेटर ज्यादा रिलायबल होते हैं। पक्का पक्का वो फटेगा। आई थिंक दे वर चाइनीज मेड, या चाइनीज के निशाना होता था, या मेड इन पाकिस्तान विद चाइनीज मेड ठप्पा, बट दोज वर प्रेफर्ड बाय मी। सर व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट? और एक है हमारा 9mm एमुनेशन में भी प्रॉब्लम होता था। अच्छा। मैं 3 राउंड मारेगा फिर मिस फायर, ऐसा होता था। ओके बहुत मिस फायर होते थे। ओके। द क्वालिटी ऑफ द राउंड। 9 पैरा एसएफ, 9 पैरा को सर घोस्ट ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? घोस्ट ऑपरेटर इसलिए बोलते थे क्योंकि हम लोग वी कुड आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मेरे समय तो ये टर्म यूज नहीं होता था, बट लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड यूजिंग दिस टर्म, मे बी बिकॉज वी स्टार्टेड हंटिंग देम इन देयर हाइडआउट्स, डीप इन द फॉरेस्ट, डीप इन द माउंटेन्स, जंगल्स, जहाँ वो लोग अपने आप को सेफ सोचते थे, वही जाके हम ठोकते थे। सर क्या आपका कुछ स्पेशल? मैं बोलता था लोगों को कि देखो हमसे बड़ा भूत प्रेत नहीं है उनके लिए वी आर द बिगेस्ट घोस्ट। जो रात में सो रहा है, सपना देख रहा है उग्रवादी, और बट सुबह उठा तो देखो पेंगिंग बैठा हुआ है। हेलो, क्या सपना देखा? यू सी देयर लॉट ऑफ डिफरेंस। सर आपके सामने अगर टेररिस्ट ऐसा हुआ है कभी, सो रहा था और वो उठा और आप बैठे हो, ऐसा हुआ है रियल में? वो जब मैं हाइड आउट मारा था उधर पुत्साई में उधर भी तो सो रहे थे आधा। उनको पता ही नहीं लगा क्या हो गया, सोते सोते ही कौन आ गया, क्या हो गया, उनको पता ही नहीं लगा। इट मस्ट हैव बीन हॉरिबल ड्रीम फॉर देम। फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने वाले बंदे ने, आपको जो टेररिस्ट है आपका, उसको पता है कि कौन है ये, इन दिस इज कर्नल पेंगिंग, उसको समझ में आ गया कि ये आ गया अब? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, दे वर नॉट बीन एबल टू, बट आपका नाम चलता था? गांव में चलता। आई शुड टेल देम, जब ये फिदाइन हुआ था ना, हाँ हाँ। फिदाइन अटैक शुरू हुआ था, हम तो तंबू में रहते थे। सो हमारे पास ना पेरीमीटर फेंसिंग था, कुछ वॉल भी नहीं था, कुछ नहीं था, खुले में। खुले में। मैं बोलता था गांव वालों को, यार उनको बुलाओ, हम तो ढूंढ रहे हैं उनको, तो आने दो, फायर करने दो, तो हम मारेंगे, फिर आसान हो जाएगा हमारा काम। कोई नहीं आता था। बट दे डिड नॉट नो आई शुड टाई डॉग्स। खाना खिला के ना चुपचाप से जगह जगह बांध के रखता था। कुत्ता को कैसे उल्लू बनाएगा वो? तो कुछ तो हमें भी करना है ना। And I never cared for Fidain, etc., etc. No, no, no. सर आपको किसी चीज से डर लगता है? आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? See, I'm mostly, I'll say 70% product of our great organization of our country, and 30%, 20% I'm self-made. And I want to learn. I'm that kind of person, and I don't want to keep doing mistakes. We all do mistakes. But the takeaway is that मिस्टेक से सीखना है, फिर दोबारा नहीं करना है, जानबूझ के नहीं करना है गलतियाँ ना। हमने भी किया है बहुत, बचपन में किया है, अभी काफ़ी एल्डरली हो गया, अभी भी करते हैं हम। कभी कभी गलती कुछ बोल देता है, कर भी देता है, वी हैव टू कीप लर्निंग। सर आर यू अफ्रेड ऑफ डेथ? नहीं, मैं सोचा भी नहीं कभी। कभी कभी होता है कि आजकल इतना टीवी में, सोशल मीडिया में आता है कि मरने के बाद कहा जाता है, बट आई शट इट आउट। आई जस्ट शट आउट। डू यू बिलीव इन गॉड? My mother was Hindu. Officially, I am Hindu. My father was a tribal. We follow Donji Polo. We pray to sun and the moon and forces of nature. जो हिंदू, पुराने ज़माना के हिंदू
बिल्कुल ही. Vedic times, they Right. used to follow. Right. It is something like that. Similar forces of nature, Agni, fire, water, sun, moon. Do you believe there is a God? I don't believe there is God. Do you believe there is life after death? Do you believe there is a soul? आत्मा होती है कि सिर्फ शरीर होता है? See, I have limited knowledge on this subject. However, my opinion is that it's a cycle. Life is a cycle, kind of cycle. Okay. But whether the cycle restricts to only human beings or with other living things, I'm not sure. Reincarnation. Reincarnation into a plant or animal or only human beings, that I'm not very sure. But I slightly believe with the concept of कि something was there in this human being and it has gone to अच्छा. another human being or another animal, something like that. Something. So something that must. And I think there is some kind of creator which could be nature itself, which could be what we call the universe or nature, itself is God. सर आपने ह्यूमंस को बहुत अच्छे काम करते देखा हो, बहुत बुरे काम करते हुए देखा हो, दोनों देखे हों. एंड नोबडी बेटर देन यू टू गिव अस द एक्चुअली स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड द बैड. दोनों एक्सट्रीम्स आपने देखे हुए हैं, बहादुरी भी और ब्रुटैलिटी भी. आपका ह्यूमन नेचर पे क्या ओपिनियन है? इंसान की फितरत क्या है? इंसान की फितरत क्या होता है? उसका नेचर असल में अच्छा है? इंसान फंडामेंटली अच्छा है? इंसान फंडामेंटली इविल है? क्या है इंसान? आई थिंक फंडामेंटली अच्छा है, बट दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स. सो वी से फंडामेंटली गुड and who can be themselves good and be strong and they continue to be good. ये हो गया मान लीजिए 40-50%. Now around 20-30% will be the बीच में. ना उनको पता है गुड है ना बैड है, they are बीच में. और एक तरफ the good who became bad, ऐसे वाला लोग है. Right. Now all this good and bad are also slightly relative. थोड़ा relative है. बिल्कुल 100% relative. बिल्कुल. बट जनरली आपने बताया कि आपको फंडामेंटल लेवल पे अच्छे ही होते हैं. अच्छा होता है. Then they see the environment. उससे चेंज हो जाता है. हाँ, उससे environment and pressure from society बहुत कुछ होता है. Then you have personal negativity like greed. Like ambition, like all those things. जो खराब चीजें होता है ना, कई बार वो ज्यादा हो जाता है इंसान में. सर एक ऐसी कौन सी मेमोरी है आपके माइंड में जहां आप वापस जाना चाहते हो? You want to go back to that place and go back in time to that point. Now, is it related to military operations or something else? To your entire life. If you had to choose one memory to go back to. Two memories. Okay. When my dad used to crack a joke and my mom used to laugh. And my mother used to smile oblique laugh. That is one. Second, हम जब when I used to hold both my children. These are the best memories that you have. Yes, forever, till the time I die. Family is family. Family को किसी भी हाल में ना आप नेग्लेक्ट नहीं करना है. मम्मी पापा भाई बहन बच्चा, your wife, they are the most important. You are strong ना, अपने आप कंट्री स्ट्रांग हो जाएगा. फैमिली हैज टू बी स्ट्रांग ऐसे. एंड यू हैव टू बी काइंड टू ईच अदर. यू मस्ट बी काइंड टू ईच अदर. एंड यू शुड नॉट हैव बेकार का एक्सपेक्टेशंस. देयर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स. लाइक आई एम ए फादर. मैं पहले बार फादर बन रहा हूँ.
I don't know what is perfect fatherhood. So I also make mistakes. Yeah. Yeah. I make mistakes. Yeah. My father made mistakes. My mother made mistakes. So what? Their family. So family मजबूत होना. And kind to each other, and we have to forgive oneself also. All in the process of learning. That is why one of the biggest fear I have now is not learning from mistake. Say मेरा बेटी कायरा वो पढ़ाई कर रही है और थोड़ा गुस्सा दिखा दिया और मैंने उसको ऐसे हाथ लगा दिया. You see, then I feel bad. Right. So if I don't learn from this, what have I learned? Just say my son, Dion, he's my lion. And उसको अगर मैंने थोड़ा खराब से गाली दे दिया, when it was not necessary at all, Yeah. तो मुझे इतना बुरा लगता है. Right. सो फैमिली ना एकदम मम्मी पापा मतलब योर इमीडिएट फैमिली देन योर एक्सटेंडेड फैमिली ऐसा होना है. यूनिटी विद लव एंड रिस्पेक्ट वो होना है. एक दूसरे को माफ करना है. योर फादर नीड नॉट बी रिच और हैंडसम Yeah. और पावरफुल. नो, ही इज योर फादर. The end of the story. You may have a child, who is not perfect physically, mentally. So what? वो मेरा child है. उसको प्यार करना ही है. And what is प्यार? Unconditional होना है ये. Unconditional love. ये लोग सुना होगा. But unconditional kindness, unconditional empathy, you see, unconditional forgiveness. And the ability to forgive oneself also has to be there. मैं family weak, country weak. सीधा सीधा बात है. Family strong, country strong. सर कंट्री स्ट्रांग से एक सवाल, हाँ जी. आपको क्या लगता है हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारा कंट्री का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. थोड़ा बहुत छोटा मोटा थोड़ा इस जगह को इधर करना है, इस जगह को इधर करना है, वही जरूरी है. थोड़ा ऑर्गेनाइज होना है. हम वी हैव टू बिकम स्लाइटली ऑर्गेनाइज्ड. ग्रेटेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन. इससे बड़ा सिविलाइजेशन दुनिया में नहीं है. एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, वेरी प्राउड. एंड थोड़ा बहुत थोड़ा टाइम लगेगा. थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाए. कितना साल तो हम मुगल्स के नीचे थे, कितना साल हम अंग्रेजों के नीचे थे जो लूट पाट करके चले गए. Yes. कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए. और वी आर ट्राइंग टू रीबिल्ड. तो इन द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग everyone's contribution is absolutely necessary. Absolutely necessary. This is not the time to be selfish. This is the time to be, helping the government. They are trying their best. Sir, there are people in the government that are not trying their best. Corruption है. You know that corruption तो होती है. It's a reality, right? अगर आप पावर में होते हैं, आप करप्ट ऑफिशियल्स को या करप्ट पॉलिटिशियंस को क्या पनिशमेंट देते? Firstly, I've been very fortunate. मैं फौज में था. जी. And now after फौज I play golf only. गोल्फ में कोई करप्शन ही नहीं है. आप खेलो, जीतो और जाओ. सर वहाँ भी चीटिंग होती है, मुझे बताया. बिल्कुल चीटिंग कम है. अच्छा. जो चीटिंग है सबको पता है ये चीटर है. वो ऐसे भी जीतते नहीं है. तो आप अच्छा खेलो, वेदर है, ग्राउंड है, गोल्फ कोर्स है और ओलंपिक मेडल जीतो जाके. देयर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ही नहीं है. तो लाइक दैट इवन इन द सीवी स्ट्रीट आई हैवंट सीन करप्शन. सुना है मैंने भी. आई हैव हर्ड. सर क्या पनिशमेंट होनी चाहिए पर इनके लिए? दैट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड. ये गवर्नमेंट का जिम्मेवारी है. इनको तनख्वाह लेता है वो लोग भी. सो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर सिटीजन को अकाउंटेबल करना है. सर आपको क्या लगता है हमारे यूथ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमारे यूथ का एक बड़ा चैलेंज तो ये है कि सी आई एम नॉट एक्सपर्ट बट सिंस आई हैव माय ओन चिल्ड्रन एंड आई एम अवेयर ऑफ फ्यू मोर चिल्ड्रन
एक पर्पस रखना है, पर्पस। नाउ पुराने ज़माने में क्या थे ना, मोस्टली गरीब थे, तो दे हैड नो चारा बट टू वर्क वेरी हार्ड राइट। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन ना। अभी ऐसे हो गया ना कि सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक लेवल हैज़ बीन यस, अटेन्ड, करेक्ट। so a child must develop some purpose, build some purpose, और पर्पस एक घुसा देना चाहिए उसके अंदर, थोप ही देना चाहिए, हाँ, होना चाहिए। तब बेला नहीं बैठना है। सर ये बेला बैठने से मेरे को एक और सवाल दिमाग में आता है। हमारी पूरी यूथ, ज़्यादातर लोग एडिक्टेड हैं, सोशल मीडिया से एडिक्शन हो चुका है, दे आर नॉट एबल टू फोकस। आप उनके लिए क्या बोलेंगे? जब ये कोरोना हुआ था, मैंने इंजेक्शन नहीं लिया, वैक्सीन नहीं लिया था। अच्छा। नहीं लिया मैंने, तो मुझे ये कोविड कोरोना से डर ही नहीं है। बहुत ही बेकार का मुझे बीमारी लगता है, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम होगा ठीक हो जाएगा, ये कोई इतना बड़ा चीज़ बना दिया। वो तो बीमारी नहीं है, और यूथ के लिए तो नथिंग। ये थोड़ा बहुत एल्डरली लोग को इफेक्ट किया होगा, वो कोई भी बीमार उनको इफेक्ट करता है। नाउ मुझे ज़्यादा चिंता उसका नहीं है, मुझे ज़्यादा चिंता मोबाइल फ़ोन का है एंड इंटरनेट, इसका ज़्यादा चिंता है। ये बहुत बड़ा वायरस बन गया है। सो हाउ टू सुटेबली यूज इट फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट मस्ट कम इन करिकुलम, इन प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, इन कॉलेज ऑल्सो। इट मस्ट कंटिन्यू, मैंने रिमाइंड करते रहना है till they have control, they develop control on themselves. Do you think it should be banned, social media? कुछ देशों ने एक सर्टेन एज के नीचे बैन कर दिया है। I don't think so, because ये देखो इंसान का सोच है ना, इसको आप बैन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। सोच तो ऐसा ही है, तो it has to be channelized, I think. It should be channelized. It should be channelized. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप रोड में जा रहे हो, कान में कुछ लगा हुआ है, हाँ, आगे पीछे से गाड़ी जा रहा है, इट शुड बी फाइन। उसको फाइन या जेल डालना चाहिए। हैं, रोड के बीच में आप जा रहे हो कान में लगा के और ये मोबाइल लेके, यू आर एंडेंजरिंग अदर पीपल। यस, सो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस वी नीड in public places and in dangerous places, Right. we need some regulation on this. सर मैं रिस्क टेकिंग के बारे में पूछना चाहता हूँ। Yes. आप रिस्क टेकर हो, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बहुत सारे लोग हमारे देश का यूथ पर्टिकुलरली मिडिल क्लास की एक मेंटालिटी में फंसा होता है, रिस्क नहीं ले पाते वो लोग। उनके लिए क्या मैसेज है? दे नेवर अचीव देयर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दैट। व्हाट वुड यू से टू देम? Because they don't have tangible purpose. Purpose has to be given. कैसे मिलेगा सर ये पर्पस? पर्पस तो बच्चा खुद बनाना पड़ेगा ना। मम्मी पापा हेल्प कर सकता है, भाई बहन दोस्त हेल्प कर सकता है ना, बच्चा को खुद करना पड़ेगा। पर्पस आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ जाएगा। आपको अपना पर्पस कब मिला था सर? When did you realize? At what age? No, I realized that at a very young age. What if somebody is confused? Why he is allowed himself to be confused? उसका माथा नहीं है क्या? उसका दिमाग है, भगवान ने दिमाग दिया है, मम्मी पापा ने दिमाग दिया है, कहाँ गायब हो गया वो? तो he is deciding not to use it ना। तो why he is decided not to use it, that is more important. Because he is getting everything free. आराम से मिल रहा है उसको। वो जाके काम काज कुछ नहीं करता है, फिर बोलेगा मुझे मोबाइल चाहिए, रोता रहेगा, हल्ला गुल्ला करेगा, मम्मी पापा खरीदना पड़ता है। जीन्स चाहिए, दाम वाला जीन्स वो दे देता है। थोड़ा तो डिसिप्लिन खराब होगा ना ऐसा करने से। डिसिप्लिन पे ही मैं पूछना चाहता था सर आपसे। डिसिप्लिन की प्रिस्क्रिप्शन क्या है? व्हाट वुड यू से? कोई जानता है कि वो डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन लाइफ में डालना चाह रहा है, आप क्या रिकमेंडेशन या सजेशन देंगे उसको? सबसे पहले घर में, अपने अपने घर में ना, मैं ये यंगस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ जी, यंग पीपल, बॉय ऑब्लिक गर्ल, कैन बी एनी एज। पहले
ये जो मेड सेट नहीं होना चाहिए, मेड काम करने वाला नहीं होना चाहिए. चोर्स, डू योर चोर्स हैं. यस, एब्सोल्युटली. अपना मम्मी आज बोलेगा दाल बना रहा है, दाल कहाँ रखा है, वो बर्तन पहचानो, उसको खोलना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए, साफ करना आना चाहिए, फिर बाकी उसके साथ मसाला वसाला जो जाता है ना, ये सब कुछ आना चाहिए. फिर उससे पहले घर का सफाई, झाड़ू पोछा, बाथरूम का सफाई, एवरीथिंग शुड बी डन बाय ईच इंडिविजुअल. डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिक. सब्जी काटना है, यू नो, दे टीच यू. अपना रूम को ठीक से रखना है, बेड बनाना है, पीलो को साफ करना है, गंदा हो गया तो निकालना है, धोना है, उसको सुखाना है, और हवा में उड़ ना जाए, क्लिप लगाना है, सब करना है. भाई मैं इस उम्र में झाड़ू मारता हूँ, पोछा मारता हूँ, भाई इतना अच्छा लगता है मुझे. उसके बाद मुझे शर्म ही नहीं लगता है. मैं तो बाथरूम साफ करता हूँ, वो पोटी पोट भी करता हूँ, मुझे खराब ही नहीं लगता है. आई फील सो हैप्पी आफ्टर दैट, यू नो. थेरोपेटिक. मैं खेती करता हूँ, पूरा किचन में मिट्टी लगा लगा के इधर उधर लग जाता है. आई फील हैप्पी. मुझे तो वो अर्थ का स्मेल बड़ा अच्छा लगता है. और अर्थवर्म घूमता है मेरा उंगलियों में, मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज दे क्रिएट फर्टिलाइजर. सर कोई इंसान लाइफ में फोकस नहीं कर पाता है, सपोज कीजिए, फोकस, उसके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन है? नॉट एबल टू फोकस. पर्पस, डिसिप्लिन, अपने आप आएगा फोकस. फोकस कैसा नहीं करेगा? वो सब्जी बना रहा है, उसको ऑन कर दिया आग को, फोकस कैसा नहीं करेगा? आग सब्जी को खराब कर देगा, फोकस नहीं किया तो फोकस करना ही पड़ेगा. वो कपड़ा धो रहा है, चलो पुराने जमाना स्टाइल, ऐसे ऐसे करके साबुन लगा लगा के, तो कैसे फोकस नहीं करेगा? सही बात है. वो बोलेगा हाँ इधर गंदा है, इधर गंदा नहीं है, वो गंदा वाला को धोएगा. तो फोकस, सिंपल चोर्स. दिस इज गुड ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर ह्यूमन बीइंग. सो द मोर यू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, द मोर ड्रामा विल हैपन इन योर माइंड. ऐसे ऐसे भयानक ड्रामा होगा ना, देन यू आर, यू नो, मैं तो राजा हूँ, व्हाट ब्लडी राजा, कम बैक, इसको चलो पोछा मारो. यू रिमेन ग्राउंडेड, डिसिप्लिन, पर्पस, अपने आप पर्पस आएगा. You don't have to be, you know, you don't have to become very rich or very big. You have to basically be your best. आपका बेस्ट वर्जन बनना है. And you have to be an accountable citizen who can contribute to the growth of this great nation. वो बनना है. And it starts from home. Everything begins at home, inside this pure thing called home. Family, वहाँ से शुरू होता है. As per me, other knowledgeable people might be there, experts may be there. I'm not an expert. सर मेरे सवाल तो भी खत्म नहीं होंगे. I can continue all night long, but I think that we have a lot of messages for a lot of people who, if they see this, will get the message जो आपने खोला है. You have simplified it. Apart from your operations and your experiences in combat, there are some things that you embody, that special forces officers embody, that heroes like you embody. वो चीज़ें सीखने वाली हैं जो मैंने आपसे पूछी. कंसिस्टेंसी, परसिवेरेंस, रिस्क टेकिंग, ये एबिलिटी, ये पर्सनैलिटी, ये कॉन्फिडेंस, ये पर्पस जो आपको बचपन से ही पता चल गया था. और अगर ये एबिलिटीज़ जो सर आप में हैं, ये अगर थोड़ी सी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं पॉपुलेशन में, तो आई थिंक दैट स्टार्टिंग फ्रॉम होम इज़ प्रिसाइसली व्हाट विल बी अचीव्ड. And for that, as far as I am concerned, I can't thank you enough for everything that you have done. All the time you have spent with me has been priceless, invaluable. And all the stories you've told me, everything that you have said and done, I think I can speak for everybody who will say this. They will feel
ऑनेस्ट। और आपकी जो ये सिंप्लिसिटी है सर, जो सिंप्लिसिटी है आपकी, जो आपकी एकदम कोर ऑनेस्टी है ना, मतलब इट इज जस्ट राइट देयर, इट इज राइट देयर, देयर इज नथिंग बिहाइंड द आईज एक्सेप्ट व्हाट इज द ट्रूथ। एंड मुझे लगता है अगर कुछ भी नहीं किया ना किसी ने, ये कुछ भी नहीं करा और इस चीज़ को अप्रिशिएट करा और पसंद करा और शायद इस चीज़ को लेके कोशिश करी कि थोड़ा सा मैं भी ऐसा बन जाऊं, उसी से काम हो जाएगा। विद दैट वर्ड, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होंगे इस देश के यूथ के लिए? For our country's youth, Yes. for our youth, Yes. firstly, I love them. I love all of you, boy and girl, man and woman, lady and gentleman. I love all of you. All the best. God bless all of you. You are priceless. You are Hira. You want to achieve something? No one can stop you. Nobody on earth can stop you. Aim big. बड़ा एम करो, छोटा मोटा एम मत करो, बड़ा एम करो, लेकिन सिंपल लाइफ रखो। एम बड़ा करो, सिंपल लाइफ, एंड वर्क योर एस ऑफ। इतना काम करो, इतना काम करो ना, इतना परिश्रम करो सिंसियरिटी के साथ कि भगवान भी बोले, कि गॉड भी बोले, ये बच्चा को दो, वो बच्ची को दो, यू नो। और दोस्त भी बोले यस, वो तो डिजर्व्स इट। भाई भी बोले अरे ये ही डिजर्व्स, सिस्टर दीदी भी बोले ही डिजर्व्स, यू डिजर्व इट, एंड ऑल द बेस्ट। यू आर प्राइसलेस, यू आर प्राइसलेस, देयर इज नो प्राइस ऑन यू। आप लोग सब हीरे हो। हमारे हीरो तो सर आप हो, हमारे हीरो भी आप ही हो। मेरा टाइम हो गया अभी, मेरा टाइम हो गया। और नहीं सर, आपका द फ्यूचर बिलोंग्स टू द यंगर जनरेशन, एंड बट अंडर योर गाइडेंस आपका टाइम सर डिफरेंट स्टार्ट हुआ है। इट इज पीपल लाइक यू हु वी नीड टू मेंटर द यूथ, डिफरेंट फेज ऑफ योर लाइफ। तो हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको वापस आते रहना पड़ेगा हमारे पॉडकास्ट पे, और आपको हमारे साथ बातें करती रहनी पड़ेंगी। you know, you from operations, military operations, to so many topics, you ended up making me talk, and I'm not an expert, लेकिन I have tried to be genuine, कोशिश किया मैंने, and mostly whatever I have done in my life, I have done with simplicity, and I have, लेकिन I have dreamt big, बड़ा सपना मैंने देखा है, एंड आई हैव वर्कड वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्क कोई किया ही नहीं है, ना पढ़ाई में किया है, ना फिज़िकल एक्टिविटी में किया है। अगर कुछ नहीं कर सका तो इट इज़ बिकॉज ऑफ बीमारी और समथिंग, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफर्ट। एंड आई एम एज सिंपल एज दैट। मैं तो मेरा माँ को खाना पकाने में हेल्प करता था, केकड़ा पकड़ के लाता था नदी से केकड़ा पकड़ के केकड़ा को साफ करो, फिर हम दोनों मिलके सब्जी बनाते थे, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड आई विश टू ग्रो कॉलीफ्लावर, कैरेट, मूली, very nice, very nice, very nice. So in the end, you know, I think this country is going to be great. Will be the greatest country on this earth. थैंक यू सर, जय हिंद। Jai Hind. Thank you.